اب جا کر تمہیں فرصت ملی ہے دیکھنے کی کہ میں زندہ ہوں یا پھر اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہادی کو دیکھ کر حیا کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا اور وہ اپنے ڈر اور خوف کو بھول کر واپس اپنے سٹائل میں آ گئی۔ یار آتے ہی گولہ باری شروع کر دی، سانس تو لینے دیا کرو۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھ کر کہا، یعنی کل تک میں سارا دن بخار میں پھکتی رہی اور تم نے خبر لینا تو دور کی بات، ایک فون کرنا تو ضروری نہیں سمجھا، بس اتنا ہی احساس ہے تمہیں میرا؟ حیا نے اداس ہوتے ہوئے کہا، حیا انکل نے تمہاری طبیعت کا بتایا ہی نہیں، مما نے آنٹی کو فون کیا تو انہوں نے اپنا اور تمہارا بتایا، جب بھی بابا اور مما میں تم سے ملنے آئے ہیں، بلال انکل اور فضا آنٹی بھی آئے ہیں اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ حیا نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا، ارے رکو تو بات تو سنو۔ حیا اٹھ کر باہر جانے لگی تو ہادی جلدی سے بولا، کیا ہے بولو؟ حیا نے احسان کرنے والے سٹائل میں کہا، کیا آج ہم دونوں باہر ڈنر کریں؟ ہادی نے مدھم لہجے میں بہت امید سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس خوشی میں حیا کا دل تو چاہ رہا تھا ہادی کے ساتھ باہر جانے کا، مگر جلدی اسے خوش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ اسپیشل بتانا ہے تمہیں؟ ہادی نے بخور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پل ہادی کی بات سن کر حیا کا دل زور سے دھڑکا، مگر پھر اندر سے شرارت بھڑکی۔ ڈنر کا آئیڈیا اتنا برا تو نہیں، مگر کیا ہے نا، میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ حیا مسکراہٹ دبا کر روم سے باہر چلی گئی۔ تم نے آفس میں نے بتایا نہیں کہ حیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بلال نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ذہن سے شکوہ کیا۔ پرسوں رات میں آیا تھا تو شاید خواب میں ڈر گئی تھی، اس وجہ سے فیور ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ زین نے بلال کو بتایا، اور تمہیں کیا ہو گیا یہ سر پر؟ فضا نے ہور کے سر پر سنی پلاس دیکھ کر پوچھا۔ کل گروسری کرنے کے لیے جا رہی تھی، ایک لڑکے نے بیگ چھیننے کی کوشش کی اور دھکا دے دیا تو سر پہ چوٹ لگ گئی۔ ہور نے کل والا واقعہ یاد کر کے کہا، کل واپسی آنے کے بعد زین اس سے الگ خفا ہوا تھا کہ اکیلے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی، تمہاری جگہ میں ہوتی نا جوتی اتار کر سڑک پر اس لڑکے کی توازہ کرتی۔ فضا نے غصہ کرتے ہوئے کہا، آج کل کے بچوں کو ذرا تمیز تہذیب نہیں ہے، نہ بڑوں کا لحاظ۔ بلال نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے بلال بھائی، اب کل ہی کی بات لے لے، جب اس لڑکے نے میرا بیگ چھین کر مجھے دھکا دیا تبھی دور سے ایک اور لڑکا آیا، اس نے اپنی کار روک کر نہ صرف لڑکے کو پکڑنے کی کوشش کی بلکہ مجھے بھی سہارا دے کر اٹھایا اور گھر تک وہیں چھوڑ کر گیا۔ بہت تہذیب والا لڑکا تھا اور لگ رہا تھا کہ اس کے والدین نے اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ ہور بلال کو بتا رہی تو زین نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ ہور نے تو اس کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ارے واہ، آ گئی میری بیٹی، کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ روم میں داخل ہوئی تو بلال نے مسکراتے ہوئے حیا سے پوچھا، انکل اب تو کافی بہتر ہے طبیعت، آپ کو دیکھ کر تو کافی فریش فیل کر رہی ہوں خود کو، حیا نے مسکراتے ہوئے بلال سے کہا۔ اتنے میں ہادی بھی روم میں آیا، ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ چائے سے لطف انداز ہو رہے تھے کہ اچانک ہادی نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، حیا ریڈی ہو جاؤ ورنہ واپسی لیٹ ہوگی پھر۔ ہادی کی بات پر حیا نے گھور کر ہادی کو دیکھا، کیوں کہیں پروگرام ہے تم دونوں کا؟ ہاں، بلال نے ہادی سے پوچھا۔ جی بابا، وہ حیا کہہ رہی تھی آج ڈنر باہر کرنے کا موڈ ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں لے جاتا ہوں۔ ہادی نے شرارت سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا اور حیا نے اس کو حیرت سے گھور کر دیکھا، کوئی ضرورت نہیں باہر ڈنر کرنے کی جانے کی، آج ہی طبیعت سنبھلی اور تمہیں چسکے لگ گئے باہر کھانا کھانے کے، ہر وقت ہادی کو تنگ مت کیا کرو۔ سب کے سامنے ہور نے حیا کی کلاس لے لی جس پر اس کا منہ بن گیا۔ ارے نہیں آنٹی، پریشانی کیسی؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہادی جلدی سے بولا۔ ہاں جو جانے دو بچوں کو، اچھا حیا کی طبیعت فریش ہو جائے گی، ایک دن میں مرجھا سا گیا ہے اس کا چہرہ۔ فضا نے ہور کو بولا، ابھی جائے گی تو پھر کب آئے گی، حالات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہور کو پریشانی ہونے لگی، ہادی ساتھ ہی تو ہے، پھر فکر کیا فکر ہے بیٹا، آپ لوگ جلدی آ جانا، زین نے اس بار کہا۔ حیا مسکرا کر تیار ہونے چلی گئی، اوکے میں چینج کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں حیا کیپریو اور ٹاپ پہن کر سب کو خداحافظ کہنے آئی، جیکٹ بھی لو حیا، باہر سردی ہے، ہور نے حیا سے کہا۔ حیا نے جیکٹ لی، پھر ہادی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اچھا نا، منہ ٹھیک کرو اپنا۔ ہادی ڈرائیونگ کرتے ہوئے حیا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مسکرا کر بولا، کیا بول رہے تھے تو وہاں پر کہ میرا دل چاہ رہا ہے باہر ڈنر کا؟ حیا نے آنکھیں سکڑ کر کہا، تو اس بات پہ موڈ خراب ہے تمہارا؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ ہے اب مما کا واپسی میں کتنا لمبا لیکچر دینا ہے مجھے، اچھی خاصی کلاس ہوگی میری، حیا نے ہادی کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں واپسی میں آنٹی کو کہہ دوں گا کہ میں لے کر گیا تھا حیا کو، حیا کا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہادی نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ میٹ کے نیچے حیا کو گاڑی میں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، اس نے جھک کر اٹھایا تو وہ بریسلیٹ تھا۔ یہ تو کسی لڑکی کا بریسلیٹ ہے، اور تمہاری کار میں کیا کر رہا ہے؟ حیا کے اندر کا جاسوس جاگا، ارے یہ تو شاید اسی لڑکی کا جسے 2 دن پہلے میں نے اپنے کار میں لفٹ دی تھی۔ ہادی کو صنم کی یاد آئی، اچھا تو اب یہ کام بھی شروع کر دیا ہے تم نے؟ حیا نے دب کر کہا، کیا کام؟ ہادی نے نہ سمجھی سے حیا کو دیکھا، یہی لڑکیوں
लड़कियों को लिफ्ट देने का काम। हया ने कहा, अरे यार वो बेचारी परेशान थी, समझो बस मैंने इसकी मदद की और घर छोड़कर आया। हादी ने असल बात को गोल गोल करते हुए हया को बताया, और तुम्हें अभी तक इस बेचारी से बड़ी हमदर्दी हो रही है। हया ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, हया हया क्या तुम जेलिस हो रही हो? हादी ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, मैं क्यों जेलिस होंगी इस ब्रेसलेट वाली से, मुझे भला क्या तुमसे ज़िंदगी भर इसे लिफ्ट कराते रहो। हया ने ब्रेसलेट डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा, जिसे हादी ने उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। ज़ैन और हूर भाभी, आज हम दोनों आप लोगों से एक ज़रूरी बात करने आए हैं। बिलाल ने दोनों को देखकर बात का आगाज़ किया। ऐसी क्या बात है भाई जो तुम दोनों इतने सीरियस हो गए हो? अच्छा बोलो, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात है? ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा, यूँ समझिए ज़ैन भाई, हमें ज़रूरी बात नहीं कहनी, बल्कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, एक बहुत कीमती शय। फिज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी बात कहनी है यार बिला झिझक कहो, ऐसे क्या पहले बुझा रहे हो? तुम और अशर ही मेरी फैमिली हो। ज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ैन हम दोनों की ये दिली ख्वाहिश है कि पहले, बल्कि हम दोनों की नहीं हादी की भी, हम हादी के लिए हया का हाथ मांगने आए हैं, प्लीज़ इनकार ना करना। बिलाल ने ज़ैन और रूह को देखते हुए कहा। ज़ैन और रूह चुप होकर एक दूसरे को देखने लगे। बोले, ज़ैन भाई आप चुप क्यों हैं? खामोश महसूस करते हुए फ़िज़ा ने ज़ैन से पूछा, क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ज़ैन ने बिलाल और फ़िज़ा को फिर हूर को देखकर जवाब दिया। हूर भी बिल्कुल खामोश थी ज़ैन की तरह। बिलाल तुम्हें पता ना हया मेरे लिए क्या है? ज़ैन ने सोचते हुए बिलाल से कहा, देखो ज़ैन, हया जितनी तुम्हें अज़ीज़ है इतनी मुझे भी अज़ीज़ है। मैंने इसे हमेशा अपनी बेटी समझा है, बल्कि बेटी है वो मेरी। मैं इस वक्त तुम्हारी और भाभी की दिली कैफियत समझ रहा हूँ। तुम पहले हया से हादी के लिए पूछो, इसकी मर्ज़ी बहुत अहमियत रखती है, और फिर इसके बाद ही हम कोई दूसरी बात करेंगे। बिलाल ने सबाओ से बात करते हुए कहा, अब किस बात पर नाराज़ हो? होटल के खुशगवार माहौल से ने हया की तबीयत पर अच्छा असर डाला था, मगर फिर भी वो हादी से बात नहीं कर रही थी। मैंने कब कहा कि मैं नाराज़ हूँ? हया ने एक नज़र हादी को देखा और बोली, ओके मान लिया तुम नाराज़ नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी सॉरी करता हूँ, और अब आइंदा से कभी भी किसी लड़की को कार में लिफ्ट नहीं दूंगा, सॉरी। हादी ने मुस्कुरा कर हया को देखते हुए कहा, तुम बार बार गलतियाँ करते हो फिर सॉरी करते हो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हया ने नाराज़गी से पूछा, ये प्लान तो मेरा सारी ज़िंदगी का है, मैं चाहता हूँ तुम सारी ज़िंदगी मुझसे ऐसे ही नाराज़ हो और मैं तुम्हें मनाता रहूँ। हादी ने इसकी आंखों में झाँकते हुए कहा। हादी हया की आंखें एक पल को झुकी। हया, मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, मगर तुम्हें सोचना, तुमसे मिलना, बातें करना और तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे एहसास तुम्हारे बारे में बदले। मेरी ख्वाहिश है तुम सारी ज़िंदगी मेरी आँखों के सामने यूँ ही हँसती रहो, मुस्कुराती रहो। अगर वाक़ई इस जज़्बे को मोहब्बत कहते हैं तो मुझे तुमसे मोहब्बत है। हादी एक जज़्बे के साथ बोल रहा था, जिसे सुनकर हया के दिल कड़े धड़कनें तेज़ हो गईं। आगे से इस किस्से कुछ बोला ही न गया। सुनो, क्या तुम मुझे किराया दे सकती हो? हादी ने संजीदगी से हया से कहा, किराया? मगर किस चीज़ का किराया? हया ने हैरानगी से इससे पूछा, कब से मेरे दिल में रह रही हो इस चीज़ का किराया? हादी ने सीरियस अंदाज में कहा। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। मुस्कुराते हुए हादी ने आगे बढ़कर हया का हाथ पकड़ा तो इसकी हंसी को ब्रेक लगा। अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर पहनाने लगा तो इसकी उंगली में पहले से रिंग मौजूद थी। इसको मैं कैसे भूल गई थी? हया को अपनी उंगली में वो रिंग देखकर बहुत कुछ याद आया। है तो ये रिंग भी अच्छी, लेकिन अगर तुम मेरी दी हुई रिंग पहनोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हादी ने हया की उंगली से माविया की अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर वो उतर नहीं रही थी। उफ, ये तो उतर ही नहीं रही, फिर तुम्हारी उंगली से चलो अपनी रिंग मैं दूसरी उंगली में पहना देता हूँ। हादी ने बेचारगी से कहा और हया की दूसरी उंगली में अपनी रिंग पहना दी। हादी और हया डिनर कर रहे थे। डिनर के दौरान इनकी बराबर वाली टेबल पर 3 लड़के आके बैठे, जो काफ़ी आवारा टाइप लग रहे थे और मुसलसल हया को घूर रहे थे। चलो हया, लेट हो रहे हैं, आंटी अंकल वेट कर रहे होंगे। हादी ने हया से कहा। इतने में एक बूढ़ा वेटर इन लड़कों का ऑर्डर लेकर आया और उसके हाथ में मौजूद ड्रिंक इनमें से एक लड़के के ऊपर गलती से गिर गई। अंधा है तू, आंखें नहीं है तेरे पास? लड़का चिल्लाकर बोला। सॉरी सर, गलती हो गई, वेटर परेशान होकर कहने लगा। तेरे सॉरी कहने से धुल जाएगी, मेरी सारी शर्ट ख़राब कर दी। लड़का मज़ीद बदतमीज़ी से बोला, ए मिस्टर, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपने से बड़े उम्र के लड़के आदमी से बात करने की? हया एकदम खड़ी होकर लड़के से बोली, क्यों, ये तुम्हारा बाप है जो तुम्हें बुरा लग रहा है? इस लड़के ने हया से पूछा। शट अप, जो आप जो मेरे बाबा को कुछ कहा जाकर अपने बाप की बेइज्जती करो, जिससे तुम्हें किसी से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई। हया को एकदम गुस्सा आया। हया, क्या हो गया तुम्हें? चलो यहाँ से। हादी फ़ौरन हया के पास आया और उसका हाथ खींचकर वहाँ से ले गया। क्या ज़रूरत थी हया इन लोगों के मुँह लगने की? बेसमेंट कार पार्किंग एरिया में पहुँचकर हादी ने हया से कहा, देखा नहीं था तुमने कितना ज़ईफ़ इंसान था वो बेचारा? वो लड़का इनसे बदतमीज़ी कर रहा था। हया भी बातें कर रही थी जब इन दोनों को पीछे से किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। क्या बोल रही थी ऊपर? अब ज़रा बोल के दिखाओ। वो तीनों लड़के बेसमेंट में इन दोनों के सामने खड़े हुए थे। सर, मैं आपकी बताई हुई जगह पर पहुँच गया हूँ, कहाँ हैं आप? माविया ने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा।
सॉरी यंग मैन, एक इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं सकूँगा। तुमसे मुआज़रत चाहता हूँ, फ़ोन करके बता ना सका और तुम्हें यहाँ आना पड़ा। डीएसपी इफ्तिखार ने माविया को किसी ज़रूरी काम बुलवाया था। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं कल ऑफ़िस में आ जाता हूँ, हम केस वहीं डिस्कस कर लेंगे जिसके लिए आपने मुझे बुलाया था। माविया वापस जाने के इरादे से बाहर निकला। नहीं, ऑफ़िस में नहीं आना, फ़िलहाल तो अपने पर्सनली पर्सले को लेकर मैं शहर से बाहर गया हूँ। वापस आके ही डिस्कस करूँगा मैं। अगर ऑफ़िस में डिस्कस करना होता तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलवाता। मैं और अपनी तुम्हारी मुलाकात को कुछ ऑफ़िसर्स की नज़र से खुफ़िया रखना चाहता हूँ। ख़ैर 1 हफ़्ते में मैं तुमसे खुद कॉन्टैक्ट करता हूँ। डीएसपी इफ्तिखार ने माविया से कहा, ओके सर, जैसा आप मुनासिब समझें। माविया ने कॉल डिस्कनेक्ट करके एक पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। देखो, बात कुछ ज़्यादा बढ़ाओ नहीं और कुछ नहीं बोल रही थी। चलो हया, यहाँ से। हादी इन लड़कों से कहता हुआ हया की तरफ पलटा। इसने एक नज़र बेसमेंट में नज़र दौड़ाई जहाँ गाड़ियों के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। वो हया को लेकर जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। 1 मिनट, इतनी भी जल्दी क्या है? जाने से पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए फिर चले जाना। इनमें से 2 लड़कों ने हाथी को पकड़ कर इसकी बेल्ट निकाल कर दोनों हाथ पीछे मुड़कर बांध दिए। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। हया हाथी की तरफ जाने लगी तो तीसरे लड़के ने इसका बाजू पकड़ा। छोड़ो इसका हाथ हया, निकलो यहाँ से तुम। हादी ने अपने आप को इन लड़कों से छुड़ाने की पूरी कोशिश की मगर इन तीनों ने हादी के हाथ बांधकर इसे बेबस किया। अब उसे खींचकर कार की तरफ ले जा रहे थे। छोड़ो मेरा बाजू वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, हया ने अपना बाजू छुड़ाते हुए इस लड़के से कहा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ बाजू? पागल पागल हूँ जो हाथ आया हुआ मार ऐसे ही जाने दो। इसने खबासत से हया को देखते हुए कहा। इसके दोनों साथी भी हादी को कार में डाल के अपने दोस्त के पास के आ गए। क्या ख़्याल है, आज तो फ्री में मज़े करने का मौका मिल गया है। एटम भी ज़बरदस्त है, फ्लैट में लेकर चलें या यहीं कार में? एक ने हया को खलीस नज़र से देखते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, कोई मदद करो मेरी। हया इनकी बात सुनकर खौफ से काँप गई और चीख-चीख कर मदद के लिए पुकारने लगी। अबे मुँह बंद कर पहले इसका, यहाँ ना कोई आ जाए, जल्दी से निकलो यहाँ से इसको लेकर। दूसरे लड़के ने बोला मगर इससे पहले वो हया का मुँह बंद करता एक आवाज़ उभरी, इसका बाजू फ़ौरन छोड़ो। तो वो तीनों चौंक कर मुड़े। हया ने भी मुड़कर देखा। माविया, हया के मुँह से बेइख्तियार इसका नाम निकला। आज पहली दफ़ा था कि हया ने इसका नाम अपने मुँह से लिया था और शायद आज पहली दफ़ा वो उसको अपने सामने पाकर खुश हुई थी। हया के मुँह से नाम सुनकर लड़के के हाथ की गिरफ्त हया के बाजू पर ढीली हुई जिसका फ़ायदा उठाते हुए हया भागकर माविया के पास आई। ए हीरो, चल निकल यहाँ से और इस लड़के को यहीं छोड़ दे। इनमें से एक लड़के ने प्लान चौपट होते देखकर माविया से कहा, 1 मिनट, तुम तीनों से तो मैं बाद में बात करता हूँ। माविया ने लड़कों को देखकर कहा और हया की तरफ मुड़ा। यकीनन इन मासूमों से भी तुमने पंगा लिया होगा, पीएचडी जो किया हुआ इस काम में। वो हया की जैकेट की ज़िप बंद करते हुए उससे बात कर रहा था जैसे किसी बच्चे ने कोई काम बिगाड़ दिया, अब इसको सँवारना है। ये समझ नहीं आ रही तुझे इससे क्या बात कर रहा है? चल डील कर लेते हैं, लड़की पहले हमें मिली थी, इससे पहले हम एन्जॉय करेंगे, बाद में तू कर लेना। इस लड़के ने अब के माविया को ऑफ़र करते हुए कहा, वेट बॉयज़, अभी सब मिलकर एन्जॉय करेंगे। माविया ने इस लड़के को बोला और हया की कमर पर अपने दोनों हाथ रख के इसे ऊँचे उठाकर गाड़ी की छत पर बिठाया, जिस पर हया की हल्की सी चीख निकली। इस कार से उतरना नहीं तुम्हें जब तक मैं ना बोलूँ। हया ने ऐसी ताबदेरी से गर्दन हिलाई जैसे वो हमेशा इसकी बात मानती हो, जिसे देखकर माविया चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अब वो अपनी पॉकेट से लाइटर, मोबाइल, वॉलेट, आईडी कार्ड, सिगरेट का पैकेट, कीस एक-एक चीज़ निकाल कर हया की गोद में रख रहा था। इसकी सारी कार्रवाई हया समेत वो तीनों लड़के भी होंकों की तरह देख रहे थे। अब बकवास करो, क्या भौंक रहे थे? आस्तीन के कफ ऊपर की तरफ फोल्ड करते वो इन तीनों की तरफ आया। देख इस लड़की को पहले हम। बात मुकम्मल होने से पहले माविया ने एक ज़ोरदार किक इसके पेट पे मारी। तकलीफ से चीखते हुए पेट पे हाथ रखा वो जैसे ही झुका तो पूरी शिद्दत से एक ज़ोरदार मुक्का इसके नाक पे दे मारा, जिससे इसकी नाक की हड्डी टूट गई और तेज़ी से नाक से खून निकलने लगा। दूसरा लड़का जो सेहत में इन दोनों के मुकाबले में अच्छा था, इसने आगे बढ़कर माविया को पंच मारना चाहा। माविया ने इसकी कलाई पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ी और हाथ को इस अंदाज़ से झटका दिया, वो दर्द से बिलबिला उठा और अपना हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा। तीसरा लड़का माविया को मारने के लिए इधर-उधर कोई चीज़ तलाश करने लगा। इसकी नज़र एक रॉड पे पड़ी, जिसे उठाकर वो माविया के पास आया, मगर एक की नाक और दूसरे का टूटा हुआ हाथ देखकर वो घबराए हुए अंदाज में माविया से बोला, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा और लड़की भी तुम्हारी। ये कहकर इसने रॉड नीचे फेंका और तेज़ी से भागने लगा, मगर माविया ने इसको पकड़कर सामने पिलर पर ज़ोर से इसका सर मारा और जब तक मारता रहा, जब तक इसका सर नहीं फट गया। जब वो माफ़िया माँगने लगा तो इसको भी लाकर इन दोनों के पास फेंका। नीचे पड़ी हुई रॉड को उठाकर वो इन तीनों के पास आया। इतनी एन्जॉयमेंट काफ़ी है या और एन्जॉय करना है? हया जो मज़े से मुँह खोले इन तीनों की पिटाई लगते हुए देख रही थी, अचानक इसे याद आया हादी। हया जल्दी से जंप मारकर गाड़ी से उतरी और इस गाड़ी के पास पहुँची जहाँ इन लड़कों ने गाड़ी में हादी को ज़बरदस्ती डाला था।
गाड़ी का डोर खुल गया। इसने जल्दी से हादी के हाथ खोला, मुँह से भरे हुए टिश्यू निकाले। तुम ठीक हो? हादी ने खाँसते हुए हया से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। पर तुम ठीक हो? हया ने फ़िक्रमंदी से हादी से पूछा। ठीक है, फिर हमें यहाँ से चल निकलना चाहिए, जल्दी से उठो। हाथ में रॉड उठाए अब माविया इन तीनों की मज़ीद तवाज़ो कर रहा था, जब वो दोनों अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गए। इन तीनों की चीखों की आवाज़ सुनकर होटल के गार्ड्स और चौकीदार बेसमेंट में आए। उन्होंने माविया को इन लड़कों की मज़ीद दुर्गंध बनाने से रोका। माविया ने गाड़ी की तरफ देखा जहाँ पर इसने हया को बिठाया था। अब वहाँ पर हया मौजूद नहीं थी। माविया की सारी चीज़ें नीचे गिरी हुई थी। इसने मोबाइल उठाकर इंस्पेक्टर साद को कॉल की। अभी पुलिस आकर इन तीनों को ले जाएगी, जब तक इन तीनों पर नज़र रखो। अपना ID कार्ड दिखाते हुए माविया ने गार्ड से कहा। इसने तायद में सर हिलाया और माविया अपनी चीज़ उठाकर वहाँ से निकल गया। देखा, आज तुमने अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम। हादी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हया से कहा। मेरी बेवकूफ़ी का क्या मतलब है तुम्हारा? हया ने हादी से पूछा। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन लड़कों के बीच में बोलने की? तुम्हारे बोलने से इनको मौका मिला जब भी वो हमारे पीछे आए थे। हादी ने ड्राइव करते हुए हया से कहा। वो एक बूढ़े शख्स को हया ने बोलना चाहा। क्या यार, बूढ़े शख्स को होटल का मैनेजर आकर बात संभाल लेता, तुम्हें बीच में कूदने की क्या ज़रूरत थी? अगर आज वो शख्स नहीं आता, तुम्हें अंदाज़ा है क्या कुछ हो सकता था? मैं तो शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। पता नहीं कौन सी नेकी मेरी काम आ गई आज। ये भी आज पहली दफ़ा ही हुआ था। हादी गुस्सा कर रहा था और हया चुप करके इसकी बातें सुन रही थी। आंटी बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। वाक़ई तुम में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइंदा तुम मुझे किसी से भी लड़ती झगड़ती है दूसरों के मामले में अपनी टाँग अड़ाती हुई नज़र ना आओ। हादी ने इसको चुप देखकर मज़ीद डाँटा। हादी, अगर अब तुम मुझे मज़ीद डाँटोगे तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी, हया ने रूठे हुए लहजे में कहा। यानी अभी भी तुम मुझसे नाराज़ होगी मगर खुद को सुधारोगी नहीं? हादी ने सर झटका। अच्छा ना बाबा, अब नहीं पढ़ूंगी पराए फड्डे में, अब मुंह तो ठीक करो ना अपना। हाँ, इसने हादी का गुस्सा दूर करना चाहा। इस शख्स को कहाँ देखा था तो देखा था पहले मैंने। हादी ने माविया को आज दोबारा देखकर सोचा, फिर सर झटक कर ड्राइव करने लगा और हया को घर ड्रॉप करके खुद भी अपने घर चला गया। हया घर पहुंची। थोड़ी देर जैन और हूर के पास बैठी आज वाले पूरे किस्से को गोल करके थोड़ी सी बातें करी, अपने रूम में आ गई। इसके मोबाइल पे माविया की कॉल आ रही थी। वो कश्मकश में पड़ गई, कॉल उठाए या नहीं। फिर इसने मोबाइल साइड पे रखा और चेंज करने चली गई। नाइट ड्रेस पहनकर आई तो 3 मिस कॉल शो हो रही थी और एक मैसेज आया हुआ था, पिकअप माई कॉल। इसने सेल ऑफ किया, खिड़की बंद करके सोने के लिए बेड पर लेट गई और अब हाथी के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहती थी। आज शाम घर जल्दी आ जाना। सुबह वो चारों बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, तब खिज़र ने माविया से बोला, क्यों, कोई ख़ास बात है आज? माविया ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए पूछा। हाँ, कुछ ज़रूरी गेस्ट आ रहे हैं, इनसे मिलवाना है। खिज़र बोला। कोशिश करूँगा डैड, मगर कुछ पक्का कुछ नहीं कह सकता। माविया ने टिश्यू से हाथ साफ़ करते हुए कहा। कोशिश नहीं करनी माविया, शाम में तुम जल्दी घर आ रहे हो, आम गेस्ट नहीं है। मैंने अफ़ज़ाल बर्नी को इनकी फ़ैमिली के साथ इन्वाइट किया है, तुम इनकी बेटी नैना को देख लो और इससे मिल लो। वैसे भी आजकल ट्रेंड है शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह जान लें। खिज़र ने नाश्ता करते हुए माविया से कहा। एक मिनट, ये किसकी शादी का जिक्र कर रहे हैं आप? माविया ने ना समझने वाले अंदाज में खिज़र से पूछा। शादी की बात तो बात की बात है, लेकिन अफ़ज़ाल बनने को इसलिए बुलाया ताकि तुम और नैना एक दूसरे को देख लो, जान पहचान बढ़ाओ, ताकि अगले रिश्ते के मरहल तय हो सके। खिज़र ने माविया को समझाया। नैना, वो मेकअप की दुकान, क्या हो गया डैड आपको? माविया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। कौन सा जोक सुनाया जो तुम्हें हंसी आ रही है? खिज़र ने संजीदगी से माविया को देखते हुए कहा। जिसकी आप बात कर रहे हो डैड, वो तो खुद किसी जोक से कम नहीं। अगर हया मेरी ज़िंदगी में नहीं भी होती, तब भी कम से कम नैना का तो बस चांस ही नहीं बनता था। माविया ने चेयर से उठते हुए कहा। अभी हया कौन है? खिज़र ने नगावारी से पूछा। डैड, हया आपकी होने वाली बहू है, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा आप तीनों से। माविया के बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात करने पर खिज़र बुरी तरह सुलगा। तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो और ज़हन नशीन कर लो, तुम्हारी शादी सिर्फ नैना से ही होगी। माँ बाप के फैसलों पर ही औलाद की बेहतरी होती है। खिज़र ने संजीदगी से कहा। तो आप ये बात मानते हैं जो माँ बाप औलाद के लिए फ़ैसला करते हैं, इनमें औलाद के लिए भलाई होती है? माविया ने एक नज़र नाइमा पर डाली और खिज़र से सवाल किया। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? खिज़र ने गुस्से में कहा। मतलब साफ है डैड, जब आपने कभी अपने माँ बाप के फैसले को दिल से तस्लीम नहीं किया, तो आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? आफ्टर ऑल मैं आप ही का बेटा हूँ। मैं कैसे आपकी मर्ज़ी से शादी कर लूँगा जबकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ? माविया अपने रूम में जाने लगा। एक बात अच्छी तरह सुनते जाओ, जब तुम मेरी बात का एहतराम नहीं कर सकते तो मेरी नज़र में भी तुम्हारी ख्वाहिश और खुशी की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी पसंद की लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। खज़र ने अब चीखते हुए कहा। मेरी भी ये बात आप अच्छी तरह सुन लें, इस घर में सिर्फ हया ही बहू बनकर आएगी, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और आपको मेरी ज़िद का अच्छी तरह इल्म है।
माविया ने एक एक लफ्ज़ आराम से कहा और वहाँ से चला गया। ऐसी ज़लील औलाद देकर अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही दे दी। धमकी लगा रहा है अपने बाप को, मजनू की औलाद देखता हूँ कैसे लेकर आता है अपनी पसंद की लड़की इस घर में। खज़र अपना सारा गुस्सा नाइमा पर निकाल कर वहाँ से चला गया। नाइमा दोनों हाथों में अपना सर थाम कर बैठ गई, जबकि सनम नाइमा के शोल्डर पर हाथ रखकर तसल्ली देने लगी। फिर क्या हुआ? सोनी और फरी एक साथ चीख कर बोले। फिर क्या होना था? माविया ने इसको एक जोरदार पंच मारा और उसकी नाक तोड़ दी और दूसरे का हाथ तोड़ा और तीनों की ऐसी फेंटनी लगाई कि इन तीनों को छठी का दूध याद आ गया होगा। फ्री पीरियड फ्री पीरियड पीरियड में कॉलेज की कैंटीन में बैठी हया ने पूरे एक्शन के साथ दोनों को कल वाली बात बताई। यार ये तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी फिल्म का सीन बता रही हो। फरी ने हैरत से कहा, यार इस वक्त तो मुझे यही लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई फिल्म चल रही है। हया ने इनको देखते हुए कहा, ये माविया वही है ना पुलिस वाला जो जरिश की बहन की शादी में मिला था? कसम से मुझे तो इस दिन वो किसी फिल्म का हीरो की तरह ही लग रहा था। सोनी ने खुश होकर फरी और हया को देखते हुए कहा, खैर अब हीरो शीरो तो कहीं से नहीं लगता, वो तो बस कल इसने एंट्री ऐसे वक्त में की और इन लड़कों की जो पिटाई की, इसी वजह से कह सकती हूँ कि कल मुझे इसकी शक्ल देखकर थोड़ी बहुत खुशी हुई, मगर इसका मतलब हर किसी यानी कि हीरो ही लगने लगा, 2 टके का पुलिस वाला ना हो तो। माही के मुँह से माविया की तारीफ़ सुनकर हया का हलक तक कड़वा हो गया। इसे वो मंज़र याद आया जब वो उसके बेडरूम में इसके कितने करीब आया था। ये बात तो डर के मारे वो खुद से भी शेयर नहीं करती थी। वो हीरो नहीं तो क्या, तुम्हारा वो कज़न हीरो है जिसकी जान तुमने खुद आकर बचाई। सोनी ने माविया की साइड लेते हुए कहा, ओह हेलो हादी एक सीधा-साधा और बहुत डिसेंट बंदा है। इस वक़्त वो 3 लड़के थे, वो बेचारा क्या कर सकता था? हया को सोनी का यूँ हादी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगा। वही करता ना जो माविया ने किया था, और वैसे भी हादी तुम्हें इतना डिसेंट कब से लगने लगा? असल बात जल्दी से बताओ। फरी ने इससे पूछा, अब असल बात क्या होनी है जिसे तुम दोनों मुझे देख रही हो? वैसा कुछ भी नहीं है, हया ने इन दोनों को घूर के कहा। शुक्र है यार ऐसा नहीं है। वैसे अगर तुम्हारे पास इन दोनों में से चॉइस हो, तुम्हें किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम किसको अपने लिए एज अ लाइफ पार्टनर चुनोगी? सोनी ने अचानक सवाल किया। इसके सवाल पर हया की नज़र अपने दोनों हाथों की रिंग्स पर गई। वो माविया वाली रिंग्स उतारना तो चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों भूल जाती थी। शायद माविया ने इस वक्त तंबी की थी, डर की वजह से वो नहीं उतार पा रही थी। यही वजह हो सकती है भला, और क्या वजह हो सकती है रिंग ना उतारने की? हया ने दिल में सोचा। लो तुम तो सोच में पड़ गई, ये कितना मुश्किल सवाल है। सोनी ने इसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर कहा, क्या सवाल? इसने गायब दिमागी में पूछा। अरे यही कि माविया और हादी में से एज अ लाइफ पार्टनर किसको एक को चुनना हो तो किसको चुनोगी? सोनी ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। तुम बताओ मेरी जगह और अगर तुम होती तो किसको सिलेक्ट करती? हया ने उल्टा इससे सवाल किया। मैं तो माविया को सिलेक्ट करूंगी, सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्यों भला? हया के माथे पर शिकने पड़ी। ज़ाहिर सी बात है, एक लड़की होने के नाते मैं तो अपने लिए ऐसा बंदा ही चुनूँगी ना जो मेरी प्रोटेक्शन का अच्छे से कर सकता हो। अब अगर कल माविया वहाँ ना आता तो सोचो क्या हो सकता था। इसकी बात सुनकर हया को भी चिड़चिड़ी आई। यार वैसे बात में तो दम है तुम्हारी। फरी ने भी सोनी का साथ साथ दिया। चलो क्लास अटेंड करने चलते हैं, वक्त हो गया है, हया ने बेदिली से कहा और वहाँ से उठ गई। प्लीज़ अंदर से इनको बुला दें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। हादी को समझ नहीं आया कि वो वॉचमैन से क्या कहकर, इसे सनम का नाम मालूम नहीं कि और ब्रेसलेट गोल्ड का था, तो इसलिए वो सिर्फ इसी को देना चाहता था। आप सनम बीबी की बात कर रहे हैं? वॉचमैन ने कंफर्म किया। हाँ जी वही। हादी को समझ नहीं आया, इसने वैसे ही बोल दिया। सईदा सनम बीबी को बता दो इनसे कोई मिलने आया है। साजिदा जो कि बाहर किसी काम से जा रही थी, वॉचमैन ने इसको मुखातिब करते हुए कहा, कौन आ सकता है मिलने? सनम सोचते हुए गेट पर आई। आज फरिया को भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, इसलिए इसने भी ऑफ कर लिया। अरे आप कैसे हैं? बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज़ अंदर आइए। सनम हादी को अपने घर के गेट पर देखकर खुश हुई और अंदर आने के लिए कहा। हादी को यूँ भी खड़े होना ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो अंदर आ गया। कैसी हैं आप? हादी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? कैसे हैं? सनम ने खुशदिली से पूछा। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस दिन आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, ऑफिस जा रहा था तो सोचा आपको दे दूँ। हादी ने अपने आने का मकसद बताया और ब्रेसलेट निकाल कर सनम की तरफ बढ़ाया। ये आपके पास था, आई में मैं समझी शायद मैंने इसे कहीं खो दिया है। हादी ने उदास आंखों के साथ इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। ये कॉम्बिनेशन इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। पहली मुलाकात में वो रोई थी और अभी भी शायद। जी दरअसल मेरी कार में गिर गया था, कल रात ही मुझे मिला है तो सोचा आपको देता जाऊँ। अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक सवाल पूछूं? सनम की आंखें देखकर अचानक इसने मुंह से निकाला। जी पूछिए, सनम ने जवाब दिया। क्या आपके लेंस इरिटेट कर रहे हैं आपको, या आपकी आंखों में कुछ चला गया है? हादी ने पूछा।
آپ کو ایسا کیوں لگا جبکہ میں تو لینس لگایا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میری آنکھوں میں کچھ گیا ہے۔ صنم نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میں اگر ڈائریکٹ پوچھتا تو آپ کی آئیز ریڈ ہو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہی تھی؟ آپ یقیناً یہی بولتی ہیں لینس اریٹیٹ کر رہی ہیں، آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میں کہتی کہ ابھی ابھی پیاز کاٹ کر آئی ہوں۔ صنم نے بے ساختہ بولا تو ہادی مسکرایا اور صنم بھی۔ آئی ایم سوری، مجھے اس طرح پوچھنا نہیں چاہیے تھا، مگر آپ پہلی ملاقات میں بھی آپ کی آئیز ریڈ لگی اور ابھی بھی۔ ہادی نے وضاحت دینا چاہا۔ آپ سوری نہیں بولے، مجھے آپ کی بات بری نہیں لگی۔ صنم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خضر معاویہ کی لڑائی پر خضر نائمہ کو بہت سی باتیں سنا کر گیا تھا جس پر اس کو رونا آ گیا تھا، اسی وجہ سے اس کی آئیز ریڈ ہو گئی تھی۔ آپ پلیز بیٹھے، میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ صنم نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں اب میں چلوں گا۔ ہادی نے اٹھتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر اور بیٹھے تو مجھے اچھا لگتا۔ بے ساختہ صنم کے منہ سے نکلا، پھر کبھی صحیح، اس وقت آفس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ ہادی نے بات بنائی، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ صنم نے جھجکتے ہوئے ہادی سے پوچھا۔ میرا نام ہادی ہے مس صنم۔ اپنے نام پر صنم نے بے ساختہ چونکی، وہ ابھی واچ مین نے بولا تو مجھے پتہ چلا اس کا نام۔ صنم کے کو چونکنے پر ہادی نے وضاحت دی اور اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سر جی، وہ جو 3 لڑکے آپ نے کل رات فون پر بولا تھا نا، ان کا کیا کرنا ہے؟ انہیں کل رات سے ہی حوالات میں رکھا ہوا ہے، انسپکٹر ساتھ نے معاویہ سے پوچھا۔ یہاں لے کر آؤ ان تینوں کو، معاویہ نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر تھوڑی دیر میں ان تینوں کو لے کر آیا۔ وہ تینوں ٹوٹی پھوٹی حالت میں معاویہ کو یونیفارم میں دیکھ کر مزید سہم گئے۔ اور بوائز کیسا فیل کر رہے ہیں اب تم تینوں؟ معاویہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، سر سوری، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ پولیس میں ہیں، ورنہ کبھی بھی آپ سے بدتمیزی نہیں کرتے، آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ہمت کرتے ہوئے معاویہ سے کہا، یعنی میری اتنی مار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تم لوگوں کو؟ پر یہ جو کل میں نے تم لوگوں کا نقشہ بگاڑا نا، یہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی سے بدتمیزی کرنے کی ایک چھوٹی سی سزا دی ہے میں نے تم تینوں کو۔ سر وہ بالکل ہماری بہن کی طرح ہیں، آپ پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے پیرنٹس رات سے پریشان ہوں گے اور ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، پلیز ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ دوسرے لڑکے نے بھی ہمت کی اور معاویہ سے بولا، اب تم تینوں اپنے باپ کا نام اور ایڈریس بتاؤ۔ سر پلیز ان کو یہاں نہیں بلوائیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ایک لڑکا باقاعدہ روتے ہوئے کہنے لگا، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا میں پوچھ رہا ہوں صرف اتنا جواب دو۔ معاویہ نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے ان لڑکوں سے کہا، انسپکٹر ساتھ ان تینوں میں سے ان کے گھر کے فون نمبر لو اور ان کے پیرنٹس کو بلاؤ تاکہ ان کو بھی اپنے اولاد کے کرتوتوں کا اور کارستانیوں کا پتہ چلے۔ کیا کر رہی ہے میری پرنسس؟ زین اور حور حیا کے روم میں آئے۔ کل کالج جانے کی تیاری، اندر آئے، وہیں کیوں رک گئے آپ دونوں؟ حیا نے کتابیں سمیٹتے ہوئے دونوں کو دیکھ کر کہا، حیا تمہارے بابا کو اور مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حور نے بیڈ پر ہی حیا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ حسین دوسری سائڈ پہ حیا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ چپ کیوں ہیں؟ کیا بات کرنی ہے؟ بولے۔ حیا نے ان دونوں کے چہروں کو دیکھ کر کہا، پرسوں جب بلال بھائی اور فضا آئے تھے تو انہوں نے تمہیں ہادی کے لیے مانگا تھا، مگر انہوں نے سب سے پہلے تمہاری مرضی کو اہمیت دی ہے۔ اگر تم راضی ہوتی ہو تبھی بات آگے چلے گی۔ اب بتاؤ کیسا لگتا ہے تمہیں ہادی؟ حور نے نرم لہجے میں اس کی مرضی جاننا چاہی۔ مما، حیا نے حیرت سے حور کو دیکھا، بلال میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے اور اس لحاظ سے ہادی بھی مجھے بہت عزیز ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر میرے لیے میری بیٹی کی مرضی اور خوشی معنی رکھتی ہے۔ تم بغیر کسی دباؤ کے اپنی آمادگی کے ساتھ بتاؤ، جو بھی تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ زین نے حیا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا میں آپ دونوں کو چھوڑ کر بالکل کہیں جانے والی نہیں، ہادی سے کہہ دیں اپنا بوریا بستر لے کر یہیں شفٹ ہو جائے ہمارے گھر۔ حیا نے زین کے شولڈر پہ سر رکھ کر کہا، میری بیٹی، میری جان، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، ہادی سے زیادہ پرفیکٹ میری بیٹی کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، اور ماں باپ تو جیتے ہی اپنی بیٹی کو ان کے گھر میں خوش آباد دیکھ کر ہی ہے۔ زین حیا کے کندھے کے گرد اپنے بازو رکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی آواز سے خوشی جھلکتی ہوئی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیا کے فیصلے سے بہت خوش تھا۔ چلو اب تم سو جاؤ، کالج جانا ہے تمہیں، حور نے حیا کو دیکھ کر کہا اور ماتھے پر پیار کر کے خود بھی چلی گئی۔ زین نے حور کو دیکھا، وہ بھی حور کے پیچھے حیا کو گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا۔ کیا ہوا حور، تم ٹھیک ہو؟ زین کی آواز پر حور نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے وارڈروب کا دروازہ بند کیا۔ مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں بالکل، حور نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنے سال ہو گئے ہماری شادی کو، تمہیں آج تک بات بنانے نہیں آئی، ہمیشہ پکڑی جاتی ہو، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ یہاں میری آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہو، رو کیوں رہی تھی؟
ज़ैन ने हूर का चेहरा थामते हुए कहा और ज़ैन के सीने पर सर रखकर रोने लगी। हूर, अब तुम इस तरह करके मुझे परेशान कर रही हो। ज़ैन ने इसके गिर्द हाथ बांधते हुए कहा, हया चली जाएगी तो घर कितना सूना हो जाएगा हमारा शाह। हूर ने रोते हुए कहा, यहाँ देखो मेरी तरफ, हूर, माँ बाप होने के नाते हम ये सोच पर उदास हो सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, हमारी इकलौती बेटी है ना, जिसे नाज़ों से पाला है हमने, मगर मैं हया की रज़ामंदी पर खुश हूँ, क्योंकि मैं बिलाल और हादी को जानता हूँ। हया कौन सा हमसे दूर जा रही है। जब हया को देखने का दिल चाहा, बिलाल के घर चले जाएंगे। इसके घर का माहौल हमारे घर के माहौल में कोई फ़र्क तो नहीं है ना। हया की नेचर, आदतों से भी वो लोग वाकिफ़ हैं। सबसे बढ़कर सब इसको घर में इसको चाहते हैं, और वो खुद भी इस घर में पली बढ़ी है। एक तरह से आराम से एडजस्ट हो जाएगी। सच पूछो तो मुझे तुम्हारा जैसा कोई दुःख ही नहीं, क्योंकि अगर कहीं और उसकी शादी हो रही होती तो मैं इस वक़्त रोने में तुम्हारा साथ दे रहा होता। ज़ैन हूर के आँसू साफ़ करते हुए मध्यम लहजे में इसे समझा रहा था, हमेशा की तरह।